सबने ये सोचा कि नहीं शायद ख्याल में कहा होगा, लेकिन वो बदतमीजी लड़का एक दो बार। हेलो अस्सलाम वालेकुम, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। वैक्सीनेटेड और वेबिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय IEEE। Today's hello. Hello, I cannot hear anyone. Can you hear me? No. Very बहुत हल्की आवाज आ रही है आपकी। Oh sir, can you hear me? बहुत दूर से आ रही है लेकिन कैरी ऑन, कंटिन्यू। Okay. Today's exciting technical webinar is titled Samsung Learning and its application in computer vision. And our esteemed speaker is none other than Dr. Muhammad Atif Khalid. Dr. Muhammad Atif Khalid received his PhD from the School of Computer Science and Engineering at Queen's University, Belfast, UK, MSCS and MSCS in Computer Engineering from King Fahd University, Bharat, and BE in Computer Systems Engineering from Pakistan. He is also an academic fellow of UK Higher Education. He is currently working as professor in the School of Computer Science and UCES Fast University, Karachi campus, Pakistan, with additional duty as director of campus. Before joining NUCES Fast, he was working as a senior lecturer at Northumbria University, United Kingdom. He has authored and co-authored more than 60 publications in top quality journals, including IEEE key transactions on pattern analysis, machine intelligence, pattern recognition, Journal of Machine Learning Research, IEEE transactions on multimedia with total citations of more than 2,700 and an H index of 26. Thank you so much, sir, for joining us today. Before we begin, all our participants are requested to keep your mics and videos turned off during the entire session, please. We will have a question answer session at the end in which you can raise your hand and the host will give you the opportunity to ask your question. You can also send any questions or messages to the host through the chat with your name and affiliations at the end. Now, without further ado, we'll hand over the control to our most esteemed speaker, Dr. Mohammed Atif. Okay, thank you, Zahesh, for the introduction. Before I start, is it a 45-minute session or is a licensed like we have? We can carry on after 45 minutes? Yes, sir, I will carry on. Okay, thank you. Okay, so today's I'm going to discuss about ensemble learning, which is my favorite topic and my main research area. And I'm going to discuss about its application in computer vision. So I'm going to discuss few applications that right now we are working on it. And then first I will brief about ensemble learning, what exactly is ensemble learning, so the students can know about it. And its importance, for example, especially in the deep learning era. Now, ensemble learning is getting popular and popular. So as I said, in the first part, I'm going to discuss about ensemble learning. So before, I'm going to discuss about the machine learning that I think most of you know now. That is a field of study that gives computers ability to learn. So this is a field that which gives the ability to machines that they can learn themselves at the end. So the nice diagram that shows the robots actually is going to learn themselves from is going to use a laptop himself. Okay, so for example, we have this data here, which is the training data. You can see two different faces here. And then in the test case, our task is here face recognition.
And basically, we have experience, which are called images or examples. And performance measure is going to be accuracy. So basically, in the machine learning, we have some tasks. And then this task needs to be performed based on the experience. So whatever task you have, you should be able to improve it by using experience. For example, initially, maybe you don't unable to recognize faces. Whenever we have small kids, like 1 or 2 years kid, like my daughter, or like very small kids, they don't recognize faces very well. But as over the time, they able to recognize it. Why they able to recognize it? Because of the experience. Okay, so there's some tasks that you have to perform, and that task should be improved over the time by some experience. The experience can be measures of performance, and the performance measure should be improved over the time, which is called accuracy in here. So these are the 3 main things that we need to do in the machine learning. So we have a training data, and then in the test data, we have to recognize that image. And if the machine able to recognize the faces over the time, initially maybe they are not trained well, but over the time it's able to recognize it, then yes, is the field of machine learning. So it has a different task. For example, we have a supervised learning, which is the main that I'm going to discuss. Basically, in the supervised learning, we normally learn from the supervised training data. What does it mean? It means that whatever data you have right now is going to be labeled. Somebody is going to label that data. He's going to tell you in the training that, okay, this face belongs to that person. For example, Atif Tahir, or this face belongs to Hafsa, for example, Zalish, for example, Abid, for example. So he's going to label the data. And once you label it, then from the test, then you train it. And then from the test data, you're able to recognize whether this is Anjum or Zarish or Atif is going to be recognized like this. For example, we have a very good example that we have a spam filtering, where the large number of email messages are labeled as either spam or non-spam. So we are going to have a 2-class problem in which either somebody has actually labeled the email messages either as a spam or non-spam. And what we need to do, we need to actually, whenever there's a new email message arrive, so we need to distinguish it as either spam or non-spam. And then we can say that the new email message will then be classified as either spam or non-spam. So this is a flow of supervised learning workflow. We have a training data at the end. Initially, we have a raw data. We have a labels present. The raw data somehow is labeled by somebody. And then we extract the features from it. Normally, in the classical machine learning, we extract the features. In deep learning, the features are learned by the machine itself. It converts into a matrix, which is a fixed size rows and columns. We train the model. Once we train it and we are happy with it, we have a model. Okay. After that, we are going to evaluate the model. If we are satisfied, if we are not satisfied with the model, we can again evaluate it. We can go to train it again, or we can extract the features. So there are 2 things we can do. We can improve the feature selection, feature extraction, or we can improve the model. Once you are happy with the model, that model can be used for the test data. So we have a new data. We extract the same procedure, we extract the features. Now it's going to be 1-dimensional data because now it's just a 1 sample in the test case. We predict it, then we got the required label in there. So this is a basic supervised learning workflow. So this is basically a workflow of a single model. So in reality, we have we can perform very good in a single model, but normally we have seen that when we combine our knowledge from multiple sources, always we got different solutions. And then we go for the solution, we can combine the solution and we can have we can reach an agreement. So it's a very simple, same procedure for the ensemble learning as well, that instead of using just single model, what we are trying to do, we are trying to combine knowledge from multiple models. So this is a basic concept of ensemble learning. So we have a classifier ensemble. So the last diagram that is shown is just a single classifier, you can say a single model that we talk about. But normally what happens that when we have our input features, so in the ensemble model, what we can do, we can pass this knowledge to these features to multiple classifiers.
Sorry, is any question in there? Please mute your mic, please. Okay, so we have our input features, then we have a classifier 1, classifier 2, up to classifier number n. We have a predictions, so we get some predictions from each classifier. So what we are going to do, we are going to have a combination of these predictions at the end. Once we combine it, then we have something called class prediction, the final prediction. So what we are trying to do in the classifier ensemble, normally what happened that single model can give you accuracy, let's say 70%, but the other model can also give you like 72, 73% accuracy. But what you can do actually, if you can combine the knowledge from multiple sources, you can have a very improved version of the model. So this is the basic concept of classifier ensemble that I'm going to talk about. So that we have some key ensemble questions that we need to answer during the ensemble learning. The first thing is that which components to combine. Okay, I don't know how many of you know the machine learning, but in the classical machine learning, we have different components. Component means that we have different classifiers. For example, we have a nearest neighbor classifier, we have a support vector machines, we have decision trees, we have neural networks. So we have a different classifier. So we have to think that, okay, which components we can classify? Should we combine nearest neighbor with support vector machine? Should we combine nearest neighbor with something else? Random forest, for example. So we have to think that which components we need to combine. So we can have a different learning methods, for example. We can have a different learning algorithms that are available to us. At the same time, we have a same learning method, but it's going to train in a different way. What does it mean? It means that we have some parameters inside the learning method, and that parameter can vary from one model to another model. So we can have the same learning method, but it's going to train in a different ways. Then again, we have like same learning method, but it's going to train the same way. We are going to use the same parameters, but the data size or the training data can be different. So the question is, what makes a good ensemble? So this is just a theoretical point of view that shows that Kroc and like these are the authors that in 1995 they mentioned that we can have an ensemble which is mathematically related, something like this. That the error, actually total error of the entire ensemble can be divided into two components. The first component is called the error of the component classifiers, and the other thing is called the diversity. Diversity means that how much diverse they are, the components. अब हम ये नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ कि तीन लोग आए, हमने तीन बंदों से पूछा मुझे बताओ ये खाना अच्छा है बुरा है, तीनों ने कहा नहीं अच्छा है, तो वो फायदा नहीं हुआ तीनों की एडवाइस लेने का, कोई तीनों ने एक ही आंसर दिया। इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हमें कोई चीज टेस्ट करनी है, तो हम लोगों ने कहा 10 बंदों से ओपिनियन लिया, 7 ने कहा नहीं इसमें कुछ, ये 7 ने कहा बहुत अच्छा है, 3 ने कहा बहुत इज ओके, ठीक है ना, तो हमने एक अच्छी टेस्टिंग कर ली। दिस इज हाउ वी कैन डू अ टेस्टिंग। सो टेस्टिंग की जरूरी होती है कि वी हैव डाइवर्सिटी। अगर सारे के सारे लोग एक ही चीज कहेंगे तो इट्स नॉट अ डाइवर्सिटी, तो हमारे काम नहीं आता वो डिफरेंट ओपिनियंस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट एक तो आपकी ओपिनियन जो हो डिफरेंट मैटर्स में अच्छी हो सकता है अगर आपके 10 मैटर्स हैं उसमें 9 में आपकी एक्यूरेट हो लेकिन एक में गलत हो, दैट्स फाइन। दूसरे यूजर की 9 में अच्छी हो लेकिन उस कंपोनेंट में गलत हो जो कि दूसरे बंदे ने वो कंपोनेंट यस कहा था। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट आपके पास जब एंसेम्बल लर्निंग की तरफ आते हैं तो इंडिविजुअल क्लासिफायर्स की एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए लेकिन साथ साथ डाइवर्स भी होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सैंपल नंबर 1 में है तो कुछ कहें कि यस कुछ कहें नो, सैंपल नंबर 2 में कुछ कहें यस कुछ कहें नो, लेकिन वो वेरी करें from the classifier to classifier. So this is how we can define the ensemble, that it should be a combination of error and the diversity measure, ठीक है ना। ये अलग दुनिया है, इसके अंदर ठीक ठाक हम लोग बेसिकली लेक्चर्स देते हैं on topic of this, that what are the component classifiers, how we can combine it. छोटा सा कीनोट स्पीच है, इसमें ये है कि बेसिक कॉन्सेप्ट you have to understand it, then you can study yourself that what exactly does it mean. लेकिन असल चीज ये है कि हमारे पास जो entire error होता है वो दो combination होते हैं। एक first of all this is called a component classifier which is the average error of the component classifier, and the other thing which is very important is called the diversity of the components, ठीक है ना।
सो जब भी आप टॉक करते हैं इफेक्टिव एंसेम्बल्स की, तो वी हैव एक्यूरेट एंड डाइवर्स कंपोनेंट्स, ठीक है जी। एज ए सेड, हमारी इस प्रेजेंटेशन के 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में थोड़ा सा एंसेम्बल लर्निंग के बारे में आपको बता रहा हूँ, ताकि कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा सा क्लियर होगा तो देन आई कैन टॉक अबाउट माय ओन रिसर्च दैट वी आर डूइंग इन आवर लैब, वीडियो सर्वेलेंस लैब एंड कराची कैंपस, फास्ट यूनिवर्सिटी। तो उसमें आपको जबरदस्त किस्म के एप्लीकेशन दिखाएंगे, तो यू विल लाइक मोर एक्साइटेड इन द सेकंड पार्ट। So the question is कि ensemble काम क्यों करता है? क्यों ensemble काम करता है? Because ensemble actually 3 problems को overcome करता है जो कि individual models नहीं कर सकते। पहली प्रॉब्लम जो होती है वो स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम होती है। स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम फाकी बात है, इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी, ठीक है ना। ट्रेनिंग डाटा आपका ऐसा है जो आराम से ट्रेन हो जाता है। अब प्रॉब्लम जो होती है जब आप ट्रेन करते हैं तो हर कंपोनेंट क्लासिफायर कहते हैं ओए आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी गुड। तो लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि आपको ये नहीं पता होता कि टेस्ट डाटा में कौन अच्छा परफॉर्म करे। हो सकता है कि मॉडल नंबर 1 ठीक है, ट्रेनिंग डाटा में उसने 100% एक्यूरेसी थी, लेकिन टेस्ट डाटा में हो सकता है बहुत पुअर परफॉर्मेंस है। इसको हम कहते हैं जनरलाइजेशन प्रॉब्लम। दूसरा कंपोनेंट हो सकता है कि अगेन इज गोइंग टू ट्रेन वेरी वेल, लेकिन हमें नहीं पता कि वो टेस्ट डाटा में क्या परफॉर्म करेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, रैंडमली एक मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब वो हो सकता है अनसीन डाटा में बहुत पूरा परफॉर्म करे। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप स्टैटिस्टिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। आप तमाम की तमाम मल्टीपल मॉडल्स को कंबाइन कर लें। जब कंबाइन करेंगे तो एट द एंड वो जो रिस्क होगा कि एक मॉडल अनसीन डाटा में अच्छा काम नहीं कर रहा, वो मिनिमाइज हो जाएगा। खत्म नहीं होगा, बट इज गोइंग टू बी मिनिमाइज्ड, ठीक है जी। तो ये स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम जो हमारे पास है वो है कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम जो है स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम का इनवर्स होता है, रिवर्स होता है। कंप्यूटेशन प्रॉब्लम उस वक्त आता है जब आपके पास कोई मॉडल गारंटी नहीं कर रहा कि आपके पास कोई अच्छा मॉडल, आपके पास जो बेस्ट फिट आया नहीं आया, वो ट्रेनिंग डाटा में अंडर फिट कर रहा है डाटा को। अंडर फिट का मतलब ये हुआ कि वो सही तरीके से ट्रेन नहीं कर पा रहा मॉडल को। तो दैट बिकम्स अ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम व्हिच अराइजेस व्हेन द लर्निंग मेथड कैन नॉट गारंटी फाइंडिंग द बेस्ट हाइपोथेसिस, ठीक है जी। तो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम ये हुआ कि आपका जो मॉडल है वो बेस्ट हाइपोथेसिस नहीं बता पा रहा, वो आपको ट्रेन नहीं कर पा रहा आपके डाटा को सही तरीके से। जैसे बात जब एक मॉडल ट्रेन नहीं कर सक रहा, तो आपने दूसरे मॉडल को ट्राई किया, तीसरे को ट्राई किया, चौथे को ट्राई किया, तो आपने कहा ठीक है चारों कंबाइन कर लेता हूं, तो हो सकता है वो बेसिकली इज गोइंग टू गिव मी द गुड रिजल्ट्स एट द एंड। अगेन एंसेम्बल का फायदा, कंबाइन द नॉलेज, ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम जो आती है वो रिप्रेजेंटेशनल प्रॉब्लम आती है। रिप्रेजेंटेशन प्रॉब्लम उस वक्त आती है कि आपके पास जो स्पेस होती है, वो जो फीचर्स हैं, ठीक है जी, अनलिमिटेड मिनट्स आ गए, थैंक यू। तो रिप्रेजेंटेशन प्रॉब्लम जब आती है जब हाइपोथेसिस स्पेस जो होती है वो कोई खास अप्रोक्सीमेशन नहीं होती टारगेट क्लास की, ठीक है। मतलब इट मींस दैट वो आपका जो इनपुट स्पेस है वो है ही नहीं अच्छा, इज नॉट वेरी गुड, ठीक है। तो अगेन इनपुट स्पेस अच्छा नहीं है तो हम ये कोशिश करते हैं ठीक है हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करके देख लेते हैं, अगर इंप्रूव हो गया तो ठीक है, वी आर वेल इनफ। तो रिप्रेजेंटेशन प्रॉब्लम आमतौर पर 2 एरर होते हैं, बायस एंड वेरिएंस। ये बायस को कंप्यूट करते हैं और स्टैटिस्टिकल और कंप्यूटेशनल जो होता है वो वेरिएंस को कंप्यूट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एंसेम्बल लर्निंग के बारे में, ठीक है। अभी तक जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन दी है उसमें मैंने आपको बताया कि बेसिकली मशीन लर्निंग क्या होती है। आई गेव यू सम एग्जांपल्स। फिर मैंने एंसेम्बल स्टार्ट किया, एंसेम्बल की आपको इंपॉर्टेंस बताई, मैंने आपको बताया कि एंसेम्बल क्यों इंपॉर्टेंट है और एंसेम्बल क्यों काम करता है, ठीक है जी। अब मैं आता हूं कि क्लासिफिकेशन, अब हमने ये तो एग्री कर गए कि एंसेम्बल इज यूजफुल। आई होप दैट यू एबल टू अंडरस्टैंड इट, एंसेम्बल क्यों यूजफुल है। अब जैसे बात जब कोई चीज यूजफुल होती है तो उसकी भी हमें टेक्निक्स भी लर्न करनी पड़ती है कि व्हाट आर द फ्यूजन टेक्निक्स दैट वी कैन एक्चुअली थिंक अबाउट, दैट व्हाट आर द फ्यूजन टेक्निक्स दैट वी कैन यूज इट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल वी हैव अ फ्यूजन टेक्निक्स। सबसे पहले हमारे पास आता है होमोजेनियस क्लासिफायर्स। होमोजेनियस क्लासिफायर्स में क्या होता है कि वी हैव अ सेम क्लासिफायर बट इज गोइंग टू ट्रेन ऑन अ डिफरेंट डेटा, डिफरेंट ट्रेनिंग डेटा, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल बैगिन हो गया, बोस्टन हो गया, तो ये उस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। आई विल कम बैक टू इट। तो होमोजेनियस का वर्ड है होमो, होमो का मतलब है सेम। आपने सेम क्लासिफायर यूज करना है लेकिन आपने डिफरेंट ट्रेनिंग डाटा को यूज करना है, तो इट बिकम्स अ होमोजेनियस क्लासिफायर। फिर हमारे पास आता है हेटेरोजेनियस क्लासिफायर। हेटेरोजेनियस क्लासिफायर में क्या होता है कि वी हैव अ सेम ट्रेनिंग डाटा बट वी आर गोइंग टू हैव अ डिफरेंट क्लासिफायर्स, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मेजॉरिटी लोडिंग मीन वगैरह बहुत सारा यूज होता है इसके अंदर, तो दैट बिकम्स अ हेटेरोजेनियस क्लासिफायर्स। फिर एक और चीज होती है हम कंबाइन कर देते हैं होमोजेनियस हेटेरोजेनियस को, दैट बिकम्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस क्लासिफायर्स, ठीक है। सो ये हमारे पास क्लासिफायर फ्यूजन टेक्निक्स है। सबसे पहले हम वोटिंग टेक्निक्स जो हेटेरोजेनियस के अंदर आता है वो डिस्कस कर लेते हैं।
हमारे पास होती है मेजॉरिटी वोटिंग होती है, जिसके अंदर हम ये कहते हैं ठीक है, अगर आप 4 बंदों में से 3 बंदे कह रहे हैं यस तो हम कह देंगे यस, एक बंदे का नो इज ऑलराइट, ठीक है। फिर एवरेज करते हैं प्रोबेबिलिटीज पर। इसका मतलब ये हुआ कि आमतौर पर ये होता है कि आप कभी कभी क्लासिफायर्स जो डिसीजन देते हैं वो जरूरी नहीं होता कि वो बहुत हार्ड डिसीजन हो। वो ये भी कह सकता है कि यार आई एम थिंकिंग दैट 60% इज गोइंग टू बी अ क्लास फॉर एग्जांपल स्पैम और 40% इज बिलोंग्स टू क्लास नॉन स्पैम, तो आपको एक कॉन्फिडेंस स्कोर मिल गया 0.6, दैट कैन बी यूज्ड, ठीक है। इसी तरीके से हमारी प्रोडक्ट आती है मिनिमम, मेजॉरिटी, मैक्सिमम, मीडियन, ठीक है ना, तो दैट कैन बी यूज्ड। एक एग्जांपल है छोटी सी, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास तीन क्लासिफायर्स हैं, classifier 1, classifier 2 and classifier 3, and then we have a majority vote in here, ठीक है। So we classifier 1 says 1, classifier 2 says 1, classifier 3 says 1, then we got a majority vote in। इस तरीके से classifier 1 ने कहा 1, I am saying yes, classifier 2 ने कहा yes, लेकिन classifier 3 ने कह दिया 0, लेकिन again majority vote is going to say yes। इसी तरीके से हमारे पास तीन क्लासिफायर हैं यहाँ पर 1, 2 and 3, all of them are going to say 0, so it's going to be 0, 2 of them 0, 1 is saying 1, and then it's going to be 0 at that, ठीक है। तो अगर हम वोटिंग टेक्निक्स की बात करें तो ये हमारे पास एक ग्राफ आ गया है, इसके अंदर पूरी आपके सामने इसकी डिस्क्रिप्शन है। तो क्लासिफायर 1 की अगर कॉन्फिडेंस 0.9 था, क्लासिफायर 2 का 0.5 था, क्लासिफायर 3 का 0.5 था, तो एवरेज बेसिकली इज गोइंग टू बी समेशन ऑफ ऑल दी क्लासिफायर्स डिवाइड बाय 3। प्रोडक्ट में हम जस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, मिनिमम में मिनिमम लेते हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम, तो मीडियम में हम मीडियम ले लेते हैं, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ वी कैन एक्चुअली, दिस इज कॉल्ड वोटिंग टेक्निक्स, वेरी सिंपल, वेरी पॉपुलर, वेरी यूजफुल राइट नाउ। अभी भी हमारी डीप लर्निंग, आजकल आपको पता है कि डीप लर्निंग में बहुत सारी रिसर्च हो रही है। डीप लर्निंग के अंदर जब हम डीप इंसैम्बल लर्निंग की तरफ जा रहे हैं तो यही बेसिक टेक्नोलॉजीज है जो यूज हो रही है, ठीक है जी। तो बेसिक्स आर ऑलवेज देयर, उसकी फिर इम्प्लीमेंटेशन और वो चीज वेरी करती रहती है, लेकिन बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक्स आर ऑलवेज विद। आपके पीएफ क्लिक में प्रोफेसर इमरान नसीम है, एक्चुअली वर्क्स अ लॉट इन दिस एरिया एज वेल, उन्होंने भी काफी पेपर पब्लिश किए हुए हैं इस टॉपिक पे, एंसेम्बल लर्निंग पर। तो लाइक वी हैव गुड नंबर ऑफ रिसर्चर्स वर्किंग ऑन दिस एरिया in Pakistan and in Karachi as well. So homogeneous ensemble classifiers is going to be a same classifier but different training data, for example, as I said, ठीक है जी। अच्छा, इसमें आजकल we are doing a lot of research in this area, especially deep learning के अंदर हम homogeneous classifiers को बहुत सारा integrate कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं, for example we have a technique called back-in here, then we have a boost-in as well, we have a random forest, we have others as well, ठीक है जी। तो बैगिंग को अगर मैं लेकर चलूं तो बैगिंग का मतलब ये होता है कि हमारे पास we have a sample several training sets of size n instead of just having one training set of size n। तो बैगिंग में हम ये करते हैं कि instead of having like बहुत सारे, एक हमने बहुत बड़ा डेटा सेट लेने नहीं, हम क्या कहते हैं छोटे छोटे डेटा सेट बना लेते हैं, उसके लिए 60% ऑफ द डेटा उठा लेते हैं, ठीक है जी। और फिर हर एक को अलग अलग ट्रेन करते हैं, जिससे क्या फायदा होता है कि आपको एक तो प्रॉब्लम साइज भी रिड्यूस हो गया। अगर लेट्स से आपके पास 50,000 सैंपल्स थे तो आपने 25,000 सैंपल्स ले लिए, तो आपने एक मेमोरी का लोड भी कम किया मशीन के अंदर, और आपके प्रॉब्लम जो है छोटे छोटे प्रॉब्लम से डिवाइड हो गया, ठीक है। अच्छा मोहम्मद इकबाल, आपका क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम सर। क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन ये है कि ये जो हम डेटा सेट बनाते हैं छोटे छोटे, तो ये हम रैंडम सिलेक्शन करते हैं या फिर करते हैं, ये जरा क्लियर कर। इसको हम बिल्कुल दो तरीके होते हैं, एक रैंडम सिलेक्शन भी होता है, इंटेलिजेंट सिलेक्शन भी होता है। तो नॉर्मली रैंडम सिलेक्शन ही करते हैं कि रैंडमली भी उठा लेते हैं सैंपल्स को। इसके अंदर दो चीजें आती हैं, सैंपल विद रिप्लेसमेंट एंड सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट। सैंपल विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि आपने ये कह दिया कि ठीक है कुछ सैंपल्स जो है वो बेसिकली रिपीट भी हो सकते हैं, और विदाउट रिप्लेसमेंट में ये होता है कि इट्स गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसी के ऊपर डिस्टिंग आप बनाएंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। रैंडम उठाते हैं, रैंडम एक्चुअली बेटर होता है, फास्टर होता है, लेकिन रिसर्च में देखा गया है कि लोगों ने कुछ इंटेलिजेंट टेक्निक्स भी अप्लाई की। उन्होंने पहले डाटा को क्लस्टर किया, क्लस्टर करके एक क्लस्टर को अलग ले गया, दूसरे क्लस्टर को अलग ले गया, सो दैट कैन वेरी एक्चुअली डिफरेंट टेक्निक्स कैन बी डन, ठीक है। सो व्हाट वी ट्राई टू डू, वी बिल्ड अ क्लासिफायर फॉर ईच ट्रेनिंग सेट। अच्छा, आप लोग अगर रेस हैंड करना चाहें बिल्कुल करें, ज्यादा अच्छा होता है, इससे ज्यादा इंटरेक्टिव सेशन होता है। उसी वक्त आंसर दे दें, फिर आखिर में याद रहे नहीं रहे,
तो अगर आपको क्वेश्चन करना है प्लीज स्टॉप, रेज योर हैंड, आई विल आंसर इट क्विकली। तो इकबाल ने वेरी गुड कि आपने बीच में सवाल किया। सो बिल्ड अ क्लासिफायर फॉर ईच ट्रेनिंग सेट, देन फाइंड अ क्लासिफायर्स प्रेडिक्शन। ठीक है जी। एज अ सेट, आपने जब डिफरेंट ट्रेनिंग सेट बनाए छोटे छोटे, रैंडम इज अ वेरी गुड सॉल्यूशन, लेकिन आपको बहुत ज्यादा ट्राई करना पड़ता है। आपको 60% रैंडम लेना पड़ता है, 70%, 80%, 50%। ये एक बेसिकली एक पैरामीटर होता है जो आपको ट्रेनिंग डाटा में ट्यून करना पड़ता है। ठीक है, और कितने बैगर्स लेने, ये भी पैरामीटर है जो नीड टू ट्यून। ये परफॉर्मेंस इंप्रूव कर देता है कि अगर आपकी लर्निंग स्कीम अनस्टेबल होती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके क्लासिफायर स्टेबल, दो किस्म के क्लासिफायर होते हैं, स्टेबल वर्सेस अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब होता है कि अगर आपने डाटा सेट चेंज कर दिया तो मॉडल चेंज हो जाता है। स्टेबल वो क्लासिफायर होते हैं कि अगर आप डाटा सेट चेंज करते हैं तो ज्यादा उसमें मेजर चेंज नहीं आता मॉडल में। तो चूंकि हम लोग यहाँ पर बैगेंड में सैम्पलिंग कर रहे हैं, तो बेहतर यही है कि आप अनस्टेबल क्लासिफायर्स को इस्तेमाल करें। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास फुल ट्रेनिंग डाटा है, इसके अंदर 5 डॉग्स एंड 5 कैट्स है। आपको यू कैन सी इट। तो एक ट्रेनिंग सेट है 1 उठाया, इसमें हमने रैंडमली 2 डॉग्स एंड 2 कैट्स उठा लिए। इसी तरीके से हमने एक और रैंडम डाटा उठाया, उसके अंदर 2 डॉग्स और 2 कैट्स उठा लिए। सो दिस इज हाउ द बैगिंग वर्क्स, दैट आपके पास पूरा ट्रेनिंग डाटा की जगह आपने छोटे छोटे ट्रेनिंग सेट्स बनाए और हर एक को अलग अलग ट्रेन किया और ट्रेन करके इनकी नॉलेज को कंबाइन कर दिया यूजिंग वोटिंग स्कीम्स। और वोटिंग स्कीम्स मैंने आपको अभी पढ़ाई थी। बेसिकली एवरेज प्रोबेबिलिटीज, मेजॉरिटी वोटिंग, मैक्सिमम, मिनिमम, एनीथिंग कैन बी यूज्ड। इसी तरीके से रैंडम फॉरेस्ट भी बहुत पॉपुलर है। अगर आप कैगल वगैरह कॉम्पिटिशंस देखें तो रैंडम फॉरेस्ट एक्चुअली क्वाइट गुड। रैंडम फॉरेस्ट बहुत सिंपल वर्ड्स में, मैं गौतम को नहीं स्टडी करता, बहुत सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देता हूं। बैगेन इज अ बैगेन, एग्जैक्टली द सेम एज बैगेन, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ पर आप बैगिंग में हम ये करते हैं कि फीचर स्पेस को रिड्यूस नहीं करते। जो नंबर ऑफ फीचर्स होते हैं 100, 200, 300 जो भी होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। रैंडम फॉरेस्ट में आप ये करते हैं कि आप जो है बेसिकली एक तो सैम्पलिंग तो करते ही करते हैं ट्रेनिंग डाटा की, आप साथ में फीचर्स की भी सैम्पलिंग करते हैं। तो दोनों तरीके से काम होता है, फीचर्स को भी आप सैम्पलिंग कर रहे होते हैं और साथ में आप ट्रेनिंग डाटा को भी सैम्पल कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली दिस इज कॉल्ड रैंडम फॉरेस्ट। यहाँ पर आपका ट्रेनिंग सेट गिवन होता है, फीचर्स होते हैं, नंबर ऑफ फीस होते हैं, जो एक पैरामीटर होता है भी आपको पहले डिफाइन करना होता है। इनिशियली आपका मॉडल 0 होता है। फॉर 1 to नंबर ऑफ मॉडल्स वी हैव व्हाट वी ट्राइंग टू डू, वी बूटस्ट्रैप सैंपल फ्रॉम एस। ये एग्जैक्टली वही तरीका है जो बैकएंड में हम करते हैं। ये करने के बाद हमने क्या किया, एक फंक्शन के अंदर भेज दिया रैंडमाइज फ्री लर्न्स के अंदर। इसके अंदर हमने क्या किया कि फीचर्स का बहुत स्मॉल सा एक सबसेट उठाया, उसको स्प्लिट किया और फिर हमने ट्रीज को लर्न किया और लर्न करने के बाद जो बेस्ट वाला है उसको रिटर्न कर दिया। ठीक है ना। तो बेसिकली इज अ बैगएंड, लेकिन बैगएंड में सिर्फ हमारे पास ट्रेनिंग डाटा को स्प्लिट करते हैं, यहाँ पर हम दोनों को स्प्लिट कर देते हैं। इट बिकम्स अ रैंडम फॉरेस्ट प्रोसीजर। ठीक है। बूस्टिंग, अच्छा एक तो हमारा बैगएंड रैंडम फॉरेस्ट, बूस्टिंग भी बड़ी पॉपुलर है। बूस्टिंग में क्या होता है कि अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ इस तरीके से कि इजी वर्ड्स में, इस तरीके से हो सकता है कि जैसे हमारे पास ट्रेनिंग डेटा आया, ठीक है ना, आपने पूरा डेटा लिया, आपने क्या किया, उस डेटा को पास किया किसी भी मॉडल के जरिए। जब आपने मॉडल में पास किया तो आपने कहा ठीक है यार ये आपने पास किया, तो आपके पास ऐसी बात है, आपके पास भी एक्सपीरियंस होता है। कुछ एग्जाम्पल्स जो होती हैं बहुत ज्यादा आसान होती हैं, कुछ एग्जाम्पल्स जो होती है मॉडरेट होती है, कुछ एग्जाम्पल बड़ी डिफिकल्ट होती है। ठीक है जी। तो हमने ये किया कि जो इजी एग्जाम्पल्स थी ना, वो तो हमें पता है कि बहुत इजीली क्लासिफाई हो जाएंगे, तो हमने उनका वेट कम कर दिया नेक्स्ट इटरेशन में। पहली इटरेशन से सबको पास किया सेम वेट के साथ, फिर सेकंड इटरेशन हमने क्या किया, उनका वेट्स कम कर दिया जो कि बहुत इजी एग्जाम्पल्स थी, और जो मॉडरेट और डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स थी हमने उनकी वेट्स को बढ़ा दिया। तो वेट्स को जब बढ़ाया तो उसका मतलब ये हुआ कि आज जो सेकंड स्टेज में क्लासिफायर होगा वो ज्यादा मेहनत करेगा उन एग्जाम्पल्स पर जो कि डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स होती हैं। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, हमारा बायस एरर रिड्यूस हो गया। फिर थर्ड स्टेज में हम आगे बढ़े तो इस तरीके से बेसिकली इज गोइंग टू वर्क दैट मॉडल्स जो होते हैं वो वेट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस। तो फर्स्ट स्टेज ऑल ऑफ देम हैव सेम वेट, सेकंड स्टेज वेट उनका बढ़ता है जो कि मुश्किल एग्जांपल्स होती हैं, थर्ड स्टेज में अगेन हम फोकस मोर ऑन द मुश्किल एग्जांपल्स। आगे बढ़ते बढ़ते हमारे पास एक परफेक्ट मॉडल बन जाता है। तो दिस इज कॉल्ड बूस्टिंग।
सो न्यू मॉडल्स क्या होते हैं, वो इंकरेज करते हैं कि बिकम एक्सपर्ट फॉर इंस्टेंसेस क्लासिफाइड इनकरेक्टली बाय द अर्ली मॉडल्स। जो क्लासिफाई, जो एग्जांपल्स जो हैं वो इनकरेक्टली क्लासिफाई होती है, जाहिर सी बात है वही मुश्किल होगी। तो देन वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस एग्जांपल। तो ये भी अच्छा है, वेरिएंट है तो क्या आता है। अब स्टैकिंग भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। स्टैकिंग ये होता है कि आप क्या करते हैं कि एक मॉडल आया, उसका जो आउटपुट है, आउटपुट जो है वो उसका इनपुट बन गया। तो बेसिकली द प्रेडिक्शंस ऑफ द बेस लर्निंग डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। लेवल 0 आर यूज्ड एज इनपुट फॉर द मेटल लर्नर लेवल 1। तो लेवल 0 का जो मॉडल होगा उसकी जो प्रेडिक्शंस होंगी वो कंबाइन हो जाएंगी इनपुट फीचर्स के साथ, वो लेवल 1 में चली जाएंगी। स्टैकिंग को हम आमतौर पर ब्लैक मैजिक कहते हैं। हमें नहीं पता क्यों काम कर रहा है, काम करता है, ठीक है ना। ब्लैक मैजिक theoretically एनालाइज करना इज वेरी डिफिकल्ट, बट काम कर जाता है, ठीक है ना। अब हम आते हैं डीप एंसेम्बल लर्निंग पर। डीप एंसेम्बल लर्निंग में आप देखेंगे, पहले हम एंसेम्बल लर्निंग करते थे, आज से 5-6 साल पहले, 10 साल पहले बड़ा हॉट टॉपिक होता था। अब डीप एंसेम्बल लर्निंग इज एक्सट्रीमली हॉट टॉपिक राइट नाउ। आपको एफआईपी प्रोजेक्ट्स करने हैं, एमएस प्रोजेक्ट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, पीएचडीज हैं, ये एक बहुत जबरदस्त एरिया है जो आजकल एक्सप्लोर हो रहा है, डीप एंसेम्बल मॉडल। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट जो एंसेम्बल लर्निंग में हम लर्न करते हैं वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं डीप लर्निंग मॉडल्स। डीप लर्निंग के अंदर बैगिन यूज हो रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉस फंक्शंस यूज हो रहा है, पैरेलल मॉडल्स लर्न हो रहा है, जो कि हेटेरोजेनियस डीप लर्निंग मॉडल्स हो रहा है। तो अगेन पहले रिसर्चर्स ने एंसेम्बल लर्निंग में काम किया। पहले क्या करते थे, 20 साल पहले सिंपल एंसेम्बल आया, फिर डीप लर्निंग आया, अब एंसेम्बल डीप लर्निंग आया, ठीक है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट बट इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट। अब मैं आता हूं अपने कंट्रीब्यूशंस पर, जो हमारी रिसेंट कंट्रीब्यूशंस हैं एंसेम्बल टेक्निक्स पर। सो अभी जो हमने पार्ट 1 में स्टडी किया, मैंने कोशिश की कि आपको थोड़ा सा एंसेम्बल के बैकग्राउंड दे दूं कि एंसेम्बल लर्निंग क्या होती है। मैंने स्टार्ट किया मशीन लर्निंग के डेफिनेशन से, उसके एग्जांपल दी, फिर एंसेम्बल का आपको ये किया कि एंसेम्बल बेसिकली स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम को, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को, रिप्रेजेंटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। फिर हमने कुछ टाइप सिखाई, बैगिन, बूस्टिन, एडेबल्स, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, ये एंसेम्बल के टाइप्स होते हैं। The bottom line is that what you need to understand कि ensemble क्या करता है, डिफरेंट नॉलेज को कंबाइन करता है। जब आप डिफरेंट नॉलेज को कंबाइन करते हैं तो ऐसी बात है इंप्रूवमेंट आती है। लेकिन ये एक बहुत जबरदस्त रिसर्च एरिया या आपके डेवलपमेंट एरिया आपके लिए ओपन हो जाता है कि हाउ वी कैन कंबाइन डिफरेंट नॉलेज, हाउ वी कैन, अगर डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम उसके टाइम को कैसे रिड्यूस करें, स्पीड अप कैसे करें चीजों को। अगर आप रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंप्रूवमेंट कैसे आएगी, मॉडल को कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, वोटिंग स्कीम्स क्या हो सकती हैं, कम्बिनेशन स्कीम्स क्या हो सकती हैं। सो ये एक पूरी अलग अलग दुनिया है, अलग अलग वर्ल्ड है, उसके अंदर आप फोकस करके यू कैन डू समथिंग वेरी नाइस। सो पहली जो हमारी कंट्रीब्यूशन है वो अभी मोस्ट लास्ट हमारी पब्लिश हुई है, वी प्रपोज आईबैक एफसी-नेट, है ना। ये बेसिकली एंसेम्बल फ्रेमवर्क है फॉर नॉर्मल इंटरेक्शन सर्वेलेंस वीडियोस। ये हमारा एचईसी फंडेड प्रोजेक्ट है जो कि आरपी ने दिया है, सॉरी हमें एनसीबीसी ने दिया हुआ। So उसमें यमुना जाहिद actually is our lead scientist, he works on it, and as a PI, Noman Durrani is a co-PI. So published 2 papers, one in ICIP 2020 and then IEEE Access as well in December 2020. So basically what happened, what is the motivation here? That you know that we have a lot of surveillance videos around the whole city. Karachi city में आप देखें हर जगह वीडियोस होती हैं। उन वीडियोस को लाने का मकसद ये होता है कि हम उसको थ्रेट को फाइंड कर सकें ना। तो एक तो होता है लोग को बैठ कर देख रहा हूँ, बड़ी स्क्रीन लगी हो, हजार बंदे मैनुअली पूरे शहर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक तरीका ये कर सकते हैं कि आप ठीक है एआई का यूज करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करें और आप सिर्फ वो चीज प्रेजेंट करें जो कि आपको लग रहा है थ्रेट शहर में हो रहा है कुछ ना। सडनली कोई थ्रेट आया, सडनली आ जाए, ठीक है, ये हमारा मेन इस काम में। तो बेसिकली सर्वेलेंस है, बड़े बड़े स्क्रीन लगी हुई हैं। बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू फोकस ऑन इट के ठीक है हम कैसे काम करेंगे। तो हमें ये फाइंड करना है एनॉमली किधर है, रेड फिश फाइंड करनी है। एक तो हर चीज में नॉर्मल फिश है, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड अ रेड फिश विद इन द वीडियोस। बहुत मुश्किल काम है क्योंकि वीडियोस में पता है आपको इमेजेस 1000 मिलियन ऑफ इमेजेस होती हैं, उनको एनालाइज करना, उनको रीड करना, कंप्यूटर विजन अप्लाई करना इज अ ह्यूज रिसर्च एरिया जो 20 साल से लोग काम कर रहे हैं, अभी भी काम ही कर रहे हैं बैठे हुए। अभी भी आप देखें एआई सिस्टम इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि थ्रेट को फॉरन आइडेंटिफाई कर सके। होपफुली नेक्स्ट फ्यू इयर्स वी एबल टू डू इट। और पाकिस्तान में भी हमारी जो सर्वेलेंस एजेंसीज हैं, दे एक्चुअली थिंक अबाउट इट। और हम कोशिश कर रहे हैं कि लोकल सॉल्यूशंस बनाएं, ताकि लोकल सॉल्यूशंस में ये होगा कि एक तो आपका साइबर सिक्योरिटी थ्रेट भी कम होगा, फिर आपके पास प्राइवेसी भी ज़्यादा होगी और आपकी एक्सपर्टीज विद इन द कंट्री आपके पास होनी चाहिए हर एप्लीकेशंस के अंदर।
तो मेन कंट्रीब्यूशन ये है कि हमने बेसिकली होलिस्टिक वीडियो लेवल डीप फीचर्स का स्ट्रैक किया विद इंसेप्शन V3 नेटवर्क, जो कि एक पॉपुलर डीप लर्निंग मॉडल है, और जिसने रिमूव कर दिया रिक्वायरमेंट ऑफ सेगमेंटेशन ऑफ वीडियोस बिफोर फीचर लर्निंग। हमने आगे यहाँ पे जो मैंने बात की, जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी हमारी, हमने होमोजीनियस बैग-एंड एंसेम्बल को प्रपोज किया। हमने ये किया कि इंसेप्शन V3 एक सिंगल मॉडल था, उसकी जगह हमने मल्टीपल मॉडल्स लर्न किए यूजिंग बेसिकली ट्रेनिंग डेटा स्प्लिट, और उसको 3 लेयर फुली कनेक्टेड लेयर से हमने कनेक्ट कर दिया। हमने एक्सपेरिमेंट्स रन किए, वी गॉट अ वेरी गुड परफॉर्मेंस एट दैट। ठीक है जी, तो ये हमारे पूरी डायग्राम है, बेसिकली द मॉडल आर्किटेक्चर भी है। We have like video clips which are decoded at 1 frame per second. हमने 500 नॉर्मल एबनॉर्मल सैंपल्स को लिया, इसके अंदर हमने प्री ट्रेन इंसेप्शन V3 मॉडल को यूज किया। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर PCA वगैरह अप्लाई किया जो कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस होती है, ताकि हम डायमेंशन रिड्यूस कर सकें 2048 से 148 पे लेकर आए। यहाँ पर हमने बेसिकली जो न्यूरल नेटवर्क्स है उसके अंदर हमने बैगेंड को यूज किया, 3 लेयर बैगेंड का कॉन्सेप्ट यूज किया, हर एक में अलग अलग प्रेडिक्शन थी, हमने एवरेज स्कोर किया और आखिर में बस फाइनल आउटपुट आ गया। तो ये बेसिकली हमारा मॉडल है जो कि हमने प्रपोज किया। तो अगर आप ये देखें, एग्जांपल है कि ये बेसिकली एक पेपर था सर्वेलेंस का, इसको हमने प्रिवेंट किया CVPR, बेसिकली टॉप कॉन्फ्रेंस इन मशीन लर्निंग इन कंप्यूटर विजन। ये डाटा सेट हमने वहां से डाउनलोड किया, इसके अंदर 13 क्लासेस हैं, अब्यूज है, अरेस्ट है, स्टीलिंग है, शॉपलिफ्टिंग है, वैंडलिज्म है। ट्रेनिंग टेस्टिंग इंस्टेंसेस जो है 800 810 है, 150 140 नॉर्मल एब्नॉर्मल वीडियोस। फीचर्स को एक्सट्रैक्ट किया, बेसिकली जस्ट एग्जांपल दैट वी एक्सट्रैक्ट द फीचर्स फर्स्ट। ठीक है जी, उसके बाद हमने यहाँ पर क्लासिफायर को लर्न किया, ये हमने यूज किया, आउटपुट फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्लास फंक्शंस वगैरह हमने यूज किए। तो ये हमारा मेथोलॉजी है बैगेंड एंसेम्बल, वही जो आपका डायग्राम में दिखाया था कि हमने इस तरीके से बूटस्ट्रैपिंग वगैरह यूज की। हमने इसके अंदर 10 मॉडल्स को बेस एज ए यूज किया, 0.632 बूटस्ट्रैपिंग, और उसको एवरेज कर लिया। तो बेसिकली हमने सिंपल वोटिंग स्कीम को इस्तेमाल किया। तो ये कुछ रिजल्ट्स आए। बेसिकली जो बेस मॉडल था उसकी एवरेज, ये हमारे पास यहाँ पर जो एवोल्यूशन मेजर यूज किया हमने एरियन अंडर कर्व यूज किया, 65.98 आई थी, वी गॉट अराउंड 92.06%. So the massive improvement that last time that was proposed in CVPR, which is 75%, we got 92%. ठीक है, फिर हमने डिफरेंट फ्यूजन टेक्निक्स को भी इस्तेमाल किया, हमने एवरेज को यूज किया, हमने देखा मेजॉरिटी वोटिंग जो है डूइंग वेरी वेल। दुदानीज और स्टेफर्ड भी यूज किया हमने, एडवांस रूल्स बट डजंट वेरी वेल, ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस, बट दिस आर द एक्चुअली परफॉर्मेंस दैट वी गॉट। इसी तरीके से हमने दूसरे बेंचमार्क्स में यूज किया, तो वी गॉट सम गुड परफॉर्मेंस एट द। अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करें, 13 हमारे पास बेसिकली। हमने ये भी किया कि हमने एक चूंकि आपको पता है कि वीडियो बहुत बड़ी होती है, 5-6 मिनट की होती है, हमने इसको डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया, 0 to 60 seconds, 60 सेकंड टू 120 seconds। तो इसमें डिफरेंट क्लासेस में हमारे परफॉर्मेंस आई, यू कैन सी दैट। सो 0 to 60 seconds में अब्यूज में 98% एक्यूरेसी के साथ आया, आगे था ही नहीं हमारे पे कोई ऐसी वीडियो जो 60 सेकंड ज्यादा हो। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन गेट इट डिफरेंट स्कोर्स एट दैट। मैं भी डेमो में दिखाऊंगा आप लोगों को। For example, we can see it here that we have on the left you can see that एक पर्सन आया, उसने डॉग को हिट किया, जब हिट किया तो डॉग गिर गया, तो that's the abuse that we're talking about. We got 98% accuracy, area under the curve. Accuracy दोनों कहेंगे, एक पिंजर होता है, area under the curve which is a combination of false positive and false negative. Precision recall, तो उसको हमने यूज किया। अगर हम नॉर्मल वीडियो देखें यहाँ पर, तो नॉर्मल चल रहा है, इसका स्कोर बहुत कम आया। स्कोर कम आने का मतलब ये है कि that's a normal video, कुछ भी नहीं हो रहा इस वीडियो में। तो कंक्लूजन ये है कि बेसिकली अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट एंसेम्बल लर्निंग बड़ी जबरदस्त टूल है, और डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज करें तो मोस्ट लाइकली यू आर एबल टू गेट अ गुड रिजल्ट्स। ठीक है, मैं एक डेमो रखा है, मैंने आपको डेमो दिखाता हूँ। ठीक है जी, ये हमारे पास एबनॉर्मल डिटेक्शन का एक हमने पूरा डेमो बनाया है। ठीक है, तो ये डेमो आपको शो कर रहे हैं। इसके अंदर ऑप्शन है डिटेक्ट नॉर्मली, उसको क्लिक किया तो आप बेसिकली व्हाट यूजर कैन डू, ही कैन अपलोड एन इमेज हियर, वीडियो सॉरी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वीडियोस हमने प्री ट्रेन तो नहीं है, टेस्ट पर रखी हुई है बहुत सारी वीडियोस, तो हमने एक वीडियो सिलेक्ट। अब आप देखेंगे इसमें कि कुछ लोग आ रहे हैं,
फायरिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, ये वीडियो दिखा रहा हूँ, बेसिकली दैट्स अ वीडियो दैट वी हैव। ठीक है, अब देखिए ये जस्ट वीडियो है, फायरिंग हो रही है इसमें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डिटेक्ट करें या नहीं कर सकती है। ठीक है, हमने डिटेक्ट का बटन दबाया, एक खातून भी आई मारते हुए, ये और भी लोग आ गए। तो बेसिकली दैट्स अ टिपिकल एक सडन इवेंट हुआ है, जो कि बेसिकली अगर सर्वेलेंस सिटी में लगाएं तो जहां भी लड़ाई झगड़े शुरू हो तो पुलिस को फौरन इन्फॉर्म हो जाए। अब आप देखिए हमने ये किया कि इंस्टेड ऑफ लाइक बहुत बड़ी वीडियो थी तो हम इसको डिवाइड कर दिया छोटे छोटे सेगमेंट्स में। तो 0 to 60, तो 0 to 60 में अगर आप देखें और 60 to 20 देखें और 120 to 180 देखें, अभी आपको फर्दर नजर आएगा। तो 0 to 60 सेकंड दौरान ये हुआ कि यहाँ पर कोई एबनॉर्मलिटी थी, तो स्कोर आप देखिए प्रेडिक्टिव स्कोर काफी ज्यादा आया, 99.81। ठीक है जी, अब हम सेकंड वीडियो पर गए विच इज 62। सर अभी मैं क्वेश्चंस लेता हूं उसके बाद। ठीक है सर, वीडियो शो नहीं 120 जब हमने लिया तो आप देखेंगे ये नॉर्मल वीडियो है। अच्छा, इसके अंदर जितनी जो हमारे में एल्गोरिथम्स चल रहे हैं वो हमारा अपना एल्गोरिथम है जो हमने बनाया है, जो हमने पेपर पब्लिश किया था। तो बेसिकली इट्स प्योर एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च दैट वी आर ट्राइंग टू डू। अगर हम नॉर्मल वीडियो की बात करें, ये नॉर्मल वीडियो कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें ना, तो इसकी नॉर्मलिटी ट्रैक करेंगे। आपको नजर आ रहा है ना स्क्रीन में सबको? नो सर, ये वीडियो शो नहीं हो रही इसमें। सॉरी। अच्छा ठीक है, मैंने इतनी मेहनत की पहले बता देते। एक सेकंड, जूम में भी जाकर शेयर स्क्रीन करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं जाकर शेयर करता हूँ स्क्रीन को दोबारा से, वीडियो वाली की जगह। ये आपको नजर आ रही है? अभी नहीं जी सर, अभी आ रही है। आ रही है नजर? इसको दोबारा से मैं स्टार्ट करूं? ठीक, तो इसमें जो है वो डेमो हो रहा है, इज गोइंग टू रन नाउ। तो ये जो आपको नजर आ रही है बेसिकली दैट्स अ एब्नॉर्मल इंटरेक्शन, ये हमारा सिस्टम बनाया है हमने पूरी वीडियो का। आपको नजर आ रहा है ये? नहीं सर, वीडियो अभी भी नजर नहीं आ रही। वीडियो कुछ को नजर आ रही है, कुछ को नहीं आ रही। नहीं सर, आपकी ब्राउजर वीडियो ही नजर आपकी स्क्रीन ब्राउजर आ रही है। आपने ब्राउजर शेयर किया हुआ है तो वीडियो को शेयर। नहीं, ये चीज जो वीडियो में दिखा रहा है नजर नहीं आ रही आप लोगों को? नो सर, वीडियो नहीं आ रही। अब आ रही है? नो सर। मुझे तो नजर आ रही है वीडियो। ये जो मेरी स्क्रीन में जो मैंने यूआरएल डाला हुआ है, एक प्री MP3 रन कर रहा हूँ, नजर नहीं आ रहा आप लोगों को? नो सर। मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ शेयर करके। अब आ रही नजर? जी सर, अब आ रही है। ठीक है, गुड। अच्छा, इसमें भी जाकर स्क्रीन को सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, मैंने कर लिया। ठीक है ना, तो आप देखेंगे ये हमारा सिस्टम है, इसके अंदर नॉर्मल इंटरेक्शन करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपलोड करेंगे वीडियो को। हमने एक वो वाली वीडियो ले ली जिसके अंदर फाइटिंग हो रही है। ठीक है, हमने ले ली वीडियो। ये हमने सिस्टम अपना इंटरनली डेवलप किया है और उसमें वही एल्गोरिथम लगाया है जो हमने अभी पेपर में पब्लिश किया है। तो ये बाकायदा हमारा अपना सुडो कोड एल्गोरिथम जो है हमारा अपना है लिखा हुआ। सॉरी,
तो इसमें देखेंगे कि आपको वीडियो नजर आ रही है, फाइटिंग हो रही है, तो हम देखते हैं कि डिटेक्ट कर सकते हैं, नॉर्मली को नहीं कर सकते हैं। तो अभी डिटेक्ट हम नॉर्मली, हमने बटन दबाया, इसमें लेडी भी आई है जो फाइट कर रही है, फिर लोग भी आए, लोग भी जमा हो गए, ठीक है। अब आप देखें कि हमारा सिस्टम जो था उसके अंदर ये किया कि हमने बेसिकली इसको फ्रेम से डिवाइड कर दिया। तो 0 to 16 फ्रेम अलग आया, 60 to 120 अलग आया, 120 to 180 अलग आया, ठीक है। ये जो डिफरेंट सिस्टम्स इसमें अंदर इंटीग्रेट हो। अच्छा आप देखिए तो इसमें जो पहली वाली वीडियो जो है इसके अंदर फाइटिंग हो रही है, तो इसका स्कोर बहुत हाई आया 99.81। दूसरे वाले में कोई फाइटिंग नहीं हो रही, इसका स्कोर काफी कम आया 0.010। सर इसमें एनालाइजिंग जो है फाइटिंग को करना है। वो बेसिकली एक मल्टी क्लास प्रॉब्लम है, तो 13 क्लासेस हैं, उनमें से कोई सी क्लास ले सकता है। वो सिर्फ ये बताएगा नॉर्मल है या नहीं है। इसके अंदर फर्दर डिटेल नहीं गया है कि फाइटिंग हो रही है, इसको पता है कि फाइटिंग, बस ये बता रहा है नॉर्मलिटी है समथिंग। तो फर्दर जो उसकी डिकम्पोजिशन है मल्टी क्लास प्रॉब्लम की, वो हम आज के रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर, तो फर्दर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है प्रॉब्लम। अभी एक नॉर्मल वीडियो है ना, ठीक है ना। आप नॉर्मल वीडियो में देखेंगे कि स्कोर्स जो आ रहे हैं वो नॉर्मल आ रहे हैं, 0, दैट मींस एज अ नॉर्मल वीडियो। तो पहला काम ये होता है कि हम ये फाइंड करते हैं कि एबनॉर्मल है या नॉर्मल है। एबनॉर्मल के अंदर 13 क्लासेस है हमारे पास, अब्यूज, फाइटिंग, डिफरेंट फायर फॉर एग्जांपल, 13 क्लासेस हैं, उनमें से कोई सी भी क्लास डिटेक्ट कर सकता है। अब इसमें एक और क्लास आएगी आपके पास, एक बंदा आया मोटरसाइकिल में। अच्छा इसमें हमने लोकल्स भी टेस्टिंग की है, हमारी कराची पुलिस ने भी कुछ दिए थे हमें वीडियोस, उसमें भी हमारा काफी अच्छे रिजल्ट आए। और देख रहे हैं इसके अंदर शायद कुछ जो हमारी स्ट्रीट क्राइम है दैट्स गोइंग ऑन हियर, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास सक्सेसफुल होता है नहीं होता। तो जो पहला फ्रेम आया बिटवीन 0 to 60, उसके अंदर तो बहुत पूरा स्कोर आया 0.01। दैट मींस हमको कुछ एक्टिविटी हो नहीं रही थी बेसिकली, देयर इज नथिंग गोइंग ऑन हियर, ठीक है। लेकिन सेकंड स्टेज में जब कोई बर्गरी वगैरह स्टार्ट हुई तो देखें 1.0 आ गया इसको, इसका मतलब है कि वेरी हाई स्कोर एट टाइम, ठीक है। पहले जो फर्स्ट 60 सेकंड में कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें हुई है, लेकिन इसको दिखाना चाहिए था, लेकिन फिर भी स्कोर थोड़ा कम आया, लेकिन वो लास्ट में हुआ था। लेकिन सेकंड वाले में इज गोइंग टू गिव यू वेरी गुड प्रेडिक्शन एट द एंड, क्योंकि सेकंड में कुछ फर्दर एक्टिविटी हुई। अभी हम इसको सिस्टम को बेसिकली डायरेक्टली सर्वेलेंस वीडियोस के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग चूज फाइल, वो डायरेक्टली वीडियो से इनपुट आता रहे आप हमारी कंटिन्यूअसली, वी हैव अ फ्लो के वो बताता रहे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिस्टम। तो आई कैन जस्ट शो इट टू यू दैट, स्क्रीन शेयर करके दोबारा आता हूँ प्रेजेंटेशन में। कोई और सवाल है इसमें आपका? ठीक है जी, तो ये हमारी पहली एप्लीकेशन है, इसका आई डिस्कस अबाउट इट। इन सैम्पल लर्निंग अगेन द पॉइंट आई एम से सैम्पल लर्निंग कितना अच्छा होता है। फिर हमारे कुछ मेरे थोड़े पुराने पेपर है, बट स्टिल रेलेवेंट, कि ये पामी पब्लिश हुआ था नंबर 1 इन कंप्यूटर साइंस। इसमें भी हमने ये किया कि फेस रिकग्निशन प्रॉब्लम थी, उसके अंदर हमारे पास LPQ होता है, लोकल फेस क्वांटाइजेशन, उसके अंदर डिफरेंट रेजोल्यूशंस में आप फाइंड कर सकते हैं डाटा को। तो हमने ये किया कि हमने एक्सट्रैक्ट किया डिफरेंट रेजोल्यूशंस में, और रेजोल्यूशन में एक्सट्रैक्ट करके इस लॉजिक को कंबाइन किया, कंबाइन करके हमने इंप्रूवमेंट दिखाया। तो अगेन इज अ लाइक पेपर पब्लिश इन पामी। फिर हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन फॉरेंसिक एंड सिक्योरिटी में पेपर पब्लिश हुआ, इसके अंदर हमने ये थोड़ा सा पुराना काम है, सिफ्ट एंड रूट्स, सिफ्ट डिस्क्रिप्टर्स होते हैं हमारे पास कुछ, जिसको कंबाइन किया और उसको हमने यूज किया राइटर इंडिपेंडेंट टास्क के लिए। राइटर आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम ये होती है कि मैं आपको लिखूं, या फरजान कुछ लिखे, या इकबाल कुछ लिखे, या हारिस कुछ लिखे, तो सिस्टम बता दे कि ये किसकी राइटिंग है, आया आतिफ ताहिर की है, या फैजान की है, फरजान की है, या
इकबाल की हारिस की है, तो इज अ डाटा आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम जो कि हमारे फोरेंसिक एनालिसिस में बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है जी। खासतौर पर कोई बंदा बिल लिख कर चले जाए और किसी ने जाली बिल दिखा दी, तो दैट कैन बी एक्चुअली क्वाइट यूजफुल एप्लीकेशन की जाली बिल को आप फाइंड कर सकते हैं। फिर ये भी काम है मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन, स्टैक वर्जन हमने काम किया है, यू कैन सी इट, पब्लिश इन यूरो कंप्यूटिंग, ऑल ऑफ देम आर टॉप जर्नल्स, क्वार्टर वन जर्नल्स, वेरी गुड जर्नल्स। एक और रिसेंटली काम है हमारे पास, आजकल काम कर रहे हैं फ्लड क्लासिफिकेशन पे, ये पीएचडी स्टूडेंट इज वर्किंग ऑन इट। ये और पेपर पब्लिश हुआ है मीडिया एवोल्यूशन 2020 में, रिसेंटली हमने इसको पब्लिश किया इलेक्ट्रॉनिक्स जर्नल में। तो इसमें भी हमने सैम्पल मेथड यूज किया है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास आजकल फ्लड आता है, आपको पता है, शहरों में, गाँव में, देहातों में। तो क्या हम सोशल मीडिया डाटा को यूज कर सकते हैं फ्लड आइडेंटिफिकेशन के लिए? मसला ये होता है कि जब सोशल मीडिया डाटा आता है तो लोग काफी ज्यादा गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। तो डिजास्टर इवेंट जो कंपनीज होती हैं, फर्स्ट करें उन्होंने तस्वीर लगा दी फ्लड इन लेट्स से नियर पीएफ कीट, ठीक है ना। अच्छा, वहां पर कोई इत्तेफाक की बात है, फ्लड है नहीं, लेकिन किसी ने गलत वो कर दिया और तस्वीर लगा दी पीएफ कीट की जिसमें कोई फ्लड नहीं है, लेकिन उससे टैक्स गलत दिख दिया, या वाइस वर्सा। तो हमारा काम यह है कि ठीक है, हमने बेसिकली जब यूजर ने इनपुट दिया तो उसका कॉन्टेक्ट समझना कि आया वो वाकई फ्लड से मायने है भी नहीं है, और इमेज के जरिए वेरीफाई करना कि आया वहां पर फ्लड है या नहीं है। तो दैट्स टू हेल्प देम द फ्लड एजेंसीज। तो दो टास्क होते हैं, एक मल्टीमीडिया टास्क थे, इसके अंदर हमें ट्वीट्स को एनालाइज करना था, इम्बैलेंस टास्क था बहुत ज्यादा, है ना। अगेन व्हाट आई एम टू से, हमने वो बैगिंग यूज किया इसके अंदर, रैंडम सैंपल 1 2 n डिफरेंट बैगिंग मॉडल्स लगाए, मेजॉरिटी वोटिंग आखिर में पर क्लास प्रेडिक्शंस आ गई, ठीक है। कुछ डाटा ऑगमेंटेशन टेक्निक्स अप्लाई की। अच्छा, इसके अंदर हमने सारा डीप लर्निंग वगैरह यूज किया था और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सिलेक्शन यूज किया। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि आप दोनों क्लासेस को बैलेंस कर लें, ठीक है। रैंडम सिलेक्शन भी करें लेकिन विद बैलेंस अप्रोच। वही पैरावे किया डेटा को, मतलब यू कैन लुक एट माय पेपर्स, ठीक है जी। तो ये हमने बेसिकली टेक्सचुअल डाटा के लिए हमने टिपिकल टीएफ आईडीएफ को यूज किया, क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एक बहुत जबरदस्त तरीका होता है, ठीक है। वही हमने डाटा को कंबाइन किया, विजुअल डाटा टेक्स्ट डाटा को कंबाइन करके उसका एवरेज लिया, आखिर में हमने क्लास कंडीशंस को लेकर आए। तो अगर आप देखें कि हमारे पास जो रिजल्ट्स आए 2020 में, हमारे पास सिर्फ 27.86 प्रेडिक्शन आए, एवरेज जो था वो ओवरऑल। वहां पर जो हमारे पास कंपटीशन होता है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अप्लाई करती हैं, तो हमने फास्ट में भी अप्लाई किया था हमारी यूनिवर्सिटी में, तो वी गॉट 27 प्रेडिक्शन, लेकिन एवरेज जो आया था 22 आया था। तो उसमें हम लोग नंबर फर्स्ट आए थे इस कंपटीशन। Although there are universities from Europe and North America and South America, but still our university is going to perform very well, and then we ranked first in the text and visual data, which is 27.86, और second आए थे textual data। So ये हमारा काम था। अभी हम फर्दर काम कर रहे हैं 2021 में, इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करेंगे, डाटा वेटा आ गया, we are working on it. So in summary, actually we started participating in 2017 में जब पहली दफा पार्टिसिपेट किया था, हमें रैंक आया था 8। हमें कुछ नहीं पता था, हमने पुराना मॉडल लगाया, उसके अंदर डीप लर्निंग वगैरह यूज नहीं किया, बट स्टिल वी पार्टिसिपेट इन दैट कंपटीशन, वी गॉट 8। फिर 2018 में हम 4th आए, 2019 में रैंक सेकंड आए, 2020 में हम वी रैंक फर्स्ट। हमने इंप्रूव किया, कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट लेकर चला आ गए, हमने सीखा, लर्न किया, तो आखिर में ये किया। तो मैं भी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों से भी कि कॉम्पिटिशन्स होते हैं डिफरेंट, पार्टिसिपेट क्या करें, डजंट मैटर यू आर गोइंग टू विन और लूज। लर्न करने को बहुत मिलता है, डिफरेंट मेथड्स के बारे में पता चलता है, नॉलेज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। So papers that we are talking about, again what I am trying to compute कि ensemble learning जो होती है वो combine करती है knowledge from different domains, very powerful and improves the classification accuracy. Various contributions are discussed in this talk. एक और छोटी सी मेरी डेमो है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। ये बेसिकली हमने काम किया है, इसको मैं थोड़ा सा वो कर दूँ कि स्टॉप करके दोबारा से शेयर करूँ। ये वाला आपको नजर आ रहा है? कैन यू सी इट? जी सर, आ रहा है। यस सर। ये बेसिकली हमारे मिसिंग चाइल्ड सर्वेलेंस एप्लीकेशन ने बनाई है फास्ट यूनिवर्सिटी में या सालिम बनी ट्रस्ट के साथ। तो ये बेसिकली ये आपके पास ये मोबाइल एप्लीकेशन इज अवेलेबल इन एंड्रॉइड नाउ। तो इसके अंदर हमने एज इनवेरिएंट फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी अप्लाई की। इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चा फर्स्ट करें अगर 10 साल पहले खोया था
तो अगर अभी मिलता है तो ऐसी बात है उसके फेस के फीचर्स पूरे चेंज हो जाते हैं। हमने कोशिश किया कि एज इनवेरिएंट फेस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए ये एप्लीकेशन बनाई है पूरी, और इसको हमने लॉन्च भी कर दिया है। आजकल मैं टेस्टिंग फेज पर है, शायद इसको लॉन्च करेंगे। वेरी नाइस एप्लीकेशन इन दिस एरिया। इसके अंदर मिसिंग चिल्ड्रन को फाइंड करने के लिए हेल्प करेंगे, और साइलेंट मनी ट्रस्ट के साथ हमने ये प्रोजेक्ट किया। तो इसके अंदर जो मैं जो कहना चाह रहा हूँ एज वेरिएंट टेक्नोलॉजी, इसके अगेन इसके अंदर बैगिंग वगैरह में काफी यूज किया है होमोजेनियस क्लासिफायर्स को। इसके पेपर में हमारे ICCCI 2021 एक्सेप्ट हुआ है। We are going to do it. Thank you very much. So that's all of my presentation. So if you have any questions, please most welcome. Thank you so much, sir, for this informative session, and I'm sure that everyone else in this meeting feels the same. Kindly, if you have any questions, raise your hand or unmute yourself. Sir will answer your questions. एक बार सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो सर्वेलियंस सिस्टम था वीडियो का, यानी जो अनोमली डिटेक्शन, उसमें हम प्रिसीजन को देखेंगे या फिर रिकॉल, यानी ये फॉल्स पॉजिटिव, और ये तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे अगर आप। और दूसरा क्वेश्चन सर कंप्यूटेशनल के बारे में था कि जो इंसेम्बल्स होती है कंप्यूटेशनल, इनका क्या होता है? क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर कंपटीशन में जो कैगल पे होते हैं उन्होंने इंसेम्बल्स को बैन किया होता है, यानी आप मॉडल की स्टैकिंग और ये नहीं कर सकते, आपको एक सिंपल मॉडल बनाना होता है, तो उसकी क्या वजह होती है? थैंक यू। अच्छा, एक बार आपका पहला क्वेश्चन जो है, देखिए हम लोग जब यूज करते हैं ना, आमतौर पर यूज होता है इन सब में एरियन अंडर कर्व यूज होता है, ये एक और होता है उसको कहते हैं एवरेज प्रिसीजन, ठीक है। बेसिकली उसके अंदर इंटीग्रेटेड होती है फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव के जो पैरामीटर्स होते हैं, दे इंटीग्रेटेड इनसाइड इट। So basically, the area under curve is a combination of both recall and precision, which is called, the formula is 2 times precision multiplied by recall divided by precision plus recall, which is a formula for F1 measure. ठीक है, अब ये F1 मेजर आ गया, लेकिन एरिया अंडर कर्व का भी मेजर ये होता है कि आप बेसिकली याद नहीं पड़ रहा, लेकिन नीचे नंबर ऑफ ट्रू पॉजिटिव वर्सेस नंबर ऑफ फॉल्स पॉजिटिव को एनालाइज करके, टीपीआर वर्सेस एफपीआर को एनालाइज करके आप प्लॉट बनाते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर इंटीग्रेटेड होती है वो तमाम के तमाम जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, और वो एक अच्छा आपको सिस्टम बताता है जिसके अंदर वो रिकॉल और प्रिसीजन को कंबाइन करके आपको एक नॉलेज देता है। ये तो आपका पहला सवाल हो गया। तो आमतौर पर जब भी हम यूज करते हैं तो हम एरिया अंडर कर्व यूज कर लेते हैं, एवरेज प्रिसीजन वगैरह यूज कर लेते हैं, दैट कैन गिव यू अ वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन ऑफ योर सिस्टम। दूसरा सवाल जो आपका था मेरे ख्याल से वो ये था कि एंसेंबल लर्निंग कंप्यूटेशनल कंप्लेक्सिटी, यस इट इज कंप्यूटेशनल एक्सपेंसिव, लेकिन अगर आप बैगिंग वगैरह ऐसे मॉडल्स को यूज करें जो डिपेंडेंट ना हो, तो क्योंकि बैगिंग एक पैरेलल सिस्टम है, पैरेलल मॉडल है, तो आराम से मल्टीपल मशीन्स में पैरेलल में रन हो सकता है और बाद में कंबाइन कर दें, तो कंप्यूटेशनली आप रिड्यूस कर सकते हैं। आपके पास आजकल कोर मशीन्स आती हैं जो कि मल्टीपल थ्रेड्स रन कर सकते हैं, तो इंस्टेड ऑफ ट्रेनिंग वन मॉडल आप मल्टीपल मॉडल्स रन करें, उसी टाइम में रन कर सकते हैं, पैरेलल कर दिया, तो कंप्यूटेशन यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि इस तमाम के तमाम टास्क इंडिपेंडेंट होते हैं। आखिर में आकर आप सिर्फ स्कोर को कंबाइन कर रहे होते हैं, तो वो सेकंड से काम होता है। जो मेजर टास्क आपका है वो आप वन बाय वन नहीं कर रहे, यू कैन डू इट इन पैरेलल। ठीक है, तो आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। हारिस प्लीज। सर ये कोर्स जो अभी आपने थोड़ा सा पढ़ाया है, इसका कोई कंटेंट मिल सकता है? मैं थोड़ा सा दोबारा, क्योंकि शुरू में कुछ थोड़ा सा पार्ट रह गया था मेरा, ठीक है, अब मशीन लर्निंग से रिलेटेड। मेरे ख्याल से मेरी एक प्रेजेंटेशन अवेलेबल है ऑन द यूट्यूब, मैं फिर लिंक शेयर कर दूंगा, मैंने प्रेजेंटेशन में शेयर कर दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन वगैरह? टेक्स्ट में कुछ लिखा हुआ है नहीं? चलिए, ऑल डन है फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। Thank you so much, sir. We will now present a small token of appreciation to you. Have a look. Thank you very much for this very nice. Thank you. And on behalf of all the participants and our entire organizing body, we would like to thank you for humbly joining us today and giving us your time. It was an honor for us. Thank you so much. We would also like to thank our participants for joining us today and showing interest in our events. Please do share your comments and suggestions with us in the feedback form provided to you. So thank you once again and goodbye for now. Allah Hafiz. Allah Hafiz.
You can leave now, everyone.